Hello students, in previous part we have discussed about the dense connective tissue. The dense connective tissue on the basis of fibers arrangement two types, ligament and tendon. We have already studied. In this part we will discuss on the specialized connective tissue. Specialized connective tissue is basically two types, skeletal connective tissue and fluid connective tissue. We will discuss about the skeletal connective tissue. Skeletal, as the name show, it provide the framework to the body. इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं जिसके कारण से बॉडी को एक फ्रेम वर्क करने का काम होता है. दिस इज द फ्रेमवर्क which provide the internal support to the body. The skeletal connective tissue is basically two types, bone and cartilage. Bone again two types, compact bone and spongy bone. And cartilage is basically three types, hyaline cartilage, fibrous cartilage, and calcified cartilage. These are the three types of cartilage. Firstly, we will discuss on the bone. It is the hard connective tissue which provide internal support to the body or act as a framework. In adult human being there are 206 bones present. In adult human being there are 206 bones present, but in a baby there are nearly 300 bones. They are very small in size. As the growth started, these small bones joins and makes a long bones, and it remains only 206 bones in an adult human being. अब बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे बोन स्पॉन्जी हो और चाहे कॉम्पैक्ट हो, इसके जो कंपोनेंट्स है, इसमें सेल्स होती हैं, वो भी तीन प्रकार के, स्पंजी में और कॉम्पैक्ट में भी. इसके साथ साथ मैट्रिक्स दोनों के अंदर सिमिलर होता है. मैट्रिक्स में इसका एक ऑर्गेनिक साल्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक साल्ट जो कि इसको कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इनऑर्गेनिक सॉरी, और ऑर्गेनिक के अंदर इसमें प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ऑसी. बोथ टाइप ऑफ बोन, both types of means compact and spongy. Bones
contain similar type of cell थ्री टाइप्स की सेल होती हैं, कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये तीनों टाइप के बोन, चाहे वो बोन स्पॉन्जी हो चाहे कॉम्पैक्ट हो, दोनों के अंदर इस प्रकार तीनों प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। एंड मैट्रिक्स, जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो दोनों के दोनों में एक ही प्रकार का होता है। मैट्रिक्स में क्या कुछ? इनऑर्गेनिक, साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड ऑर्गेनिक प्रोटीन। इनऑर्गेनिक तो साल्ट प्रेजेंट है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट ग्रुप में या कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप में, और ऑर्गेनिक जो प्रेजेंट है वो क्या है? प्रोटीन, जिसका नाम है ऑसिन। These two types of matrix as well as three types of cells present both type of bones, whether the bone is compact or spongy. Clear? Now we draw the diagram of a bone and check its different regions. Suppose this is a bone. A bone consists two parts. एक बोन के दो पार्ट होते हैं। दो कौन कौन से? दिस वन इज, जो कॉर्नर पार्ट होता है ये अलग पार्ट, और बीच वाला जो पार्ट होता है कंस्ट्रिक्टेड, जो सिकड़ा हुआ पोर्शन होता है ये अलग। जो कॉर्नर वाला इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, दिस इज द एपीफाइसिस जोन, मींस यहां तक का, इसी प्रकार यहां तक का। This is also called epiphysis. And the other one is known as this middle part. This middle zone is known as diaphysis. These are the two parts of a bone. Corner is known as epiphysis and middle is known as diaphysis. In middle zone, a cavity is present. मिडल जोन में कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस कैविटी इज नोन एज येलो बोन मैरो। कैविटी, और ये कैविटी कौन सी? येलो बोन मैरो। व्हाई दिस इज येलो इन कलर? बिकॉज दिस कैविटी स्टोर द फैट। इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है? फैट स्टोर होती है, फैट स्टोर। एंड द कॉर्नर जो जोन है, ये कॉर्नर वाले जो जोन है इसको बोलते हैं, यहां पर इस जोन को बोलते हैं रेड बोन मैरो। दिस इज द रेड बोन मैरो. All the cells are produced, whether the RBC, WBC platelets are formed in red bone red bone marrow. This is also known as erythropoietic zone. Means erythropoietic, erythrocytes, the formation of erythrocyte is known as erythropoiesis. मतलब RBC, जितनी प्रकार की बॉडी की सेल बनती हैं, whether the cell is RBC, WBC or platelets, they are formed in red bone marrow. This is the part of a bone, and there are many tubular structures present in the middle zone. Diaphysis के अंदर tubular structure present होता है. These tubular structures are called Herbaceous canal. Herbaceous canal.
देयर आर मेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डायफाइसिस जोन, जो मिडल जोन है इससे बाहर जो कैविटी है, इसके अंदर कैविटी है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो के बाहर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, हार्वेशियन कैनल। इफ वी डाइसेक्ट इट, यदि बोन को बिल्कुल बीच से काट के देखते हैं तो इसको काटने के पश्चात इसका स्ट्रक्चर कुछ किस प्रकार से बनेगा। दिस द हार्वेशियन कैनल। सपोज कर लेते हैं ये हमारे बोन का जो रेगुलर पोर्शन है, कटिंग किया तो कटिंग करने में बोन का बीच वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। इस बीच वाले हिस्से के अंदर जो डायफाइसिस है, इसमें रैंडमली जो होती हैं कैनल प्रेजेंट होती हैं, और इन कैनल्स को क्या बोलते हैं, हार्वेशियन कैनल। ट्यूब्स प्रेजेंट हैं जिनको बोलते हैं हार्वेशियन कैनल्स। अब बोन को कटिंग किया तो एक तो ये आउटर मोस्ट जोन, ये वाला एरिया, ये आउटर मोस्ट जो ट्यूब बोन का, और एक अंदर कौन सी कैविटी है, ये कैविटी यानी ये जो कैविटी है वो कौन सी कैविटी है, येलो बोन मैरो वाली, दिस इज द येलो बोन मैरो जो कि यहां प्रेजेंट थी। तो इसकी जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, और अंदर वाली को बोलते हैं एंडोस्टियम। There are the two layers. The outer layer of bone is known as periosteum and inner zone, inner layer around the inner, तो किसकी बोन की तो इनर, लेकिन येलो बोन मैरो की आउटर होगी किस्म से, तो उसकी क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। There are many tubule structure present in this chamber and these tubules are called हार्वेशियन कैनल। इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, हार्वेशियन कैनल बोलते हैं। अब बोन में 3 प्रकार की सेल होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन बोन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ types in a bone. Which one? First one is known as osteoblast. Osteoblast. Second one is osteocytes. And third one is known as osteoclast. These are the 3 different cells present in a bone. These 3 different cells are produced, मतलब सबसे पहली सेल कौन सी है, ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल कौन बनाती है, जेनेटिक ऑस्टियम होती है, जेनेटिक बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। तो स्टेम सेल सभी को जर्मिनेट करती हैं, यानी ऑस्टियोब्लास्ट किससे प्रोड्यूस होती हैं, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल गिव राइज टू ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट का क्या फंक्शन है, इट मेक्स द बोनी मटेरियल, यानी बोन को जो मटेरियल चाहिए वो बनाने का काम कौन करती है, ऑस्टियोब्लास्ट। इट मेक्स द बोनी मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट कहां से प्रोड्यूस हुई, स्टेम सेल से। स्टेम सेल ने जर्मिनेट किया ऑस्टियोब्लास्ट को। ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या क्या प्रोड्यूस किया, इसने बोन के जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल जो चाहिए था वो उसने प्रोड्यूस कर दिया, और बोन के रिक्वायर्ड मटेरियल को प्रोड्यूस करने के बाद चेंज किसमें होगी, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर। अब इस ऑस्टियोसाइट्स इसमें चेंज होगी, इसका क्या फंक्शन है, जो बोनी मटेरियल ऑस्टियोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किया था उसको मेंटेन करना है। बोन के अंदर ये मटेरियल एज इट इज रहे, उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, osteocytes. These cells maintain the bony material. जो ऑस्टियोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किया था उस बोनी मटेरियल को मेंटेन करने का काम कौन करती है,
ओस्टियोसाइट्स। और जब ओस्टियोसाइट्स होती हैं मैच्योर होती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, उनको फैगोसाइटोसिस के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, डीजेनरेट कर दिया जाता है किसके द्वारा? ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा। इसका मतलब ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? दे डीजेनरेट द ओस्टियोसाइट्स। These cells degenerate the osteocytes. Clear? There are the three main types of cell present: osteoblast, osteocytes, and osteoclast. Osteoblast are produced by the stem cell. Means stem cell give rise to osteoblast. ओस्टियोब्लास्ट के बाद ये बोनी मेटेरियल सिंथेसाइज करती है और चेंज होती है ओस्टियोसाइट्स के अंदर। ओस्टियोसाइट क्या करेगी? जो बोनी मेटेरियल ओस्टियोब्लास्ट ने बनाया उसको मेंटेन करती हैं, और एज दे ग्रो ओल्ड दीज सेल्स आर फैगोसाइटोसिस डीजेनरेटेड बाय द ओस्टियोक्लास्ट। क्लियर? अब हम हर्वेशियन कैनल का जो स्ट्रक्चर है किस वे से अराइज होता है। हर्वेशियन कैनल जो होती है 2 और 3 कंसंट्रिक लैमेले के द्वारा कवर्ड होती हैं। सपोज दिस इज द हर्वेशियन कैनल। इस हर्वेशियन कैनल को हम एक मॉडिफाइड करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं। मैग्नीफाइड के बाद हमें चेक करते हैं इस एरिया को, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाहर कंसंट्रिक सर्कल होते हैं। इट कंटेन्स मैनी कंसंट्रिक सर्कल। This is the Hervetian canal. Hervetian canal. Hervetian canal contain many concentric circles. These are the concentric, और सर्कल को बोलते हैं लैमेली. It means these are the concentric lamellae. ये जो सारी स्ट्रक्चर है क्या कहलाएंगी? कंसंट्रिक लैमेली. और कंसंट्रिक लैमेली के अंदर इरेगुलर सरफेस होता है. मींस कुछ इस वे से इरेगुलर सरफेस. इन इरेगुलर सरफेस को बोलते हैं, सिंगल हो तो लैकुना और ज्यादा हो तो लैकुनी. दीज इरेगुलर सरफेस आर नोन एज लैकुनी. इस इरेगुलर सरफेस के अंदर क्या कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? ओस्टियोसाइट सेल. इसका मतलब इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है कौन सी होगी? ओस्टियोसाइट सेल. देयर आर मेनी ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन each lacunae. Every lacunae is attached to the tubule structure. एक lacunae दूसरी से ट्यूबुल स्ट्रक्चर से अटैच्ड होती है और इसको बोलते हैं कैनाकुली. One lacuna is attached to the other lacuna by a tubule structure called canaculi. मतलब ऑस्टियोसाइट सेल क्या काम करेंगी? जो बोनी मटेरियल ऑस्टियोब्लास्ट ने प्रोड्यूस किया था उसको मेंटेन करने का काम इसमें, ताकि बोन में किसी प्रकार का डिफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, तो उसको मेंटेन करने का काम करती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हर्बेशियन कैनल. अब एक हर्बेशियन कैनल दूसरे के साथ, जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम था हमारा, इस बोन में दिस द बोन एंड इट इज द येलो कैविटी. दिस इज द जोन वेयर द बोन्स ग्रोथ. ये बोन के ग्रोइंग एरिया है. दिस इज द बोन ग्रोथ एरिया. तो येलो कैविटी के बाहर हर्बेशियन कैनल प्रेजेंट है ट्यूबुल स्ट्रक्चर में. हर्बेशियन कैनल. हर्बेशियन कैनल एक दूसरे के साथ ऑब्लिकली अटैच्ड होती हैं. दीज आर अटैच्ड ऑब्लिकली. एक हर्बेशियन कैनल दूसरे के साथ ऑब्लिकली तिरछी जो अटैच है, इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? वॉक्समैन्स कैनल.
दोबारा सुनिए, बोन के दो कॉम्पैक्ट, दो किसी कोई बोन चाहे वो स्पॉन्जी है जी कॉम्पैक्ट है, बोन के दो जोन होते हैं, आउटर जो एजिस जोन होता है उसको बोलते हैं एपिफाइसिस, मिडिल जोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइफाइसिस। मिडिल जोन में कैविटी होती है, इस कैविटी को बोलते हैं येलो बोन मैरो। व्हाई दिस इज कॉल्ड येलो बोन मैरो? बिकॉज इट स्टोर फैट। एंड द लोअर जोन, जो कॉर्नर पे जोन है, जो वाइडर जोन है, इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्यों? It is also known as erythropoietic zone, means RBC, WBC platelets, all cells are germinate here. In the middle zone around the yellow bone cavity, there are many tubule structure arises. These tubule structures are called Hervetian canal. Each Hervetian canal is attached to other. एक Hervetian canal दूसरे से अटैच होती हैं। ये अटैचमेंट की जो साइट होती है, पहली बात तो इंक्लाइंड होती है, ऑब्लिकली होती है, और इस अटैचमेंट साइट को क्या बोलते हैं, वॉक्समैन कैनल। इस हर्विशियन कैनल में होता क्या है, बोन के अंदर नर्व्स भी चाहिए, ब्लड वेसल भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इन बोन जो कैनल्स हैं, इस कैनल्स के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स कंटेन होती हैं, जो एक दूसरे जैसे अटैचमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ के ब्लड वेसल्स या नर्व्स दूसरे से अटैचमेंट हो गए, तो इस बोन के अंदर डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन मिलते रहते हैं। इफ वी डाइसेक्ट द बोन थ्रू द सेंटर, यदि डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्ट करने के बाद हमें ऐसा स्ट्रक्चर शो होता है, ये बोन का बीच चला हिस्सा है, इस बीच के हिस्से में जो बाहर की लेयर है बोन की, उसको क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम, और अंदर वाली लेयर जो कि येलो बोन मैरो की वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। Between the periosteum and endosteum, there are many Hervetian canals. If we again magnify these Hervetian canals, we can see this type of structure. Every Hervetian canal is covered या protected by the concentric circles. एक प्रत्येक Hervetian canal जो होती है वो concentric circle के द्वारा covered होती है, और एक concentric circle को क्या बोलते हैं, concentric लैमेली। इस कंसेंट्रिक लैमेली के अंदर इरेगुलर सरफेस होता है, उस इरेगुलर सरफेस सिंगल क्या बोल देंगे उसको, लैकुना, और ज्यादा है तो क्या बनेंगे, लैकुनी। लैकुना कंसिस्ट ऑस्टियोसाइट सेल्स। लैकुना के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, जो कि बोनी मटेरियल का सब्सटेंस को एज इट इज मेंटेन करने का काम करती है। One lacuna is attached to the other by a tubule structure called canaculi. कुछ इस वे से स्ट्रक्चर बनाता है, और ऐसा बनने के बाद स्ट्रक्चर जैसे हम चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ये इनसाइड लेयर, ये आउटसाइड लेयर। आउटसाइड जो लेयर है, जो पेरियोस्टियम के इनर साइड की तरफ, ये पेरियोस्टियम है, और ये कौन सी है, एंडोस्टियम। अंदर वाली जो है एंडोस्टियम, ये इसी प्रकार स्ट्रक्चर, इसी को मॉडिफाइड करते हैं। पेरियोस्टियम के जो अंदर की तरफ सेल प्रेजेंट है, यहां पर सबसे पहले तो सेल प्रेजेंट होती है स्टेम सेल, और एंडोस्टियम के बाहर की तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट है, दीज आर द स्टेम सेल, दीज आर आल्सो स्टेम सेल। स्टेम सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, स्टेम सेल किसको प्रोड्यूस करती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो इसके बाद जो दूसरी सेल प्रेजेंट होंगी कौन सी होंगी, ये ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि स्टेम सेल से क्या प्रोड्यूस हुई, ऑस्टियोब्लास्ट। दीज आर द ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो ये भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करेंगी, बोनी मटेरियल एट लास्ट चेंज इनटू ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट कहां प्रेजेंट है, हर्वेशियन कैनल के बाद। इसका मतलब इसमें ये हर्वेशियन कैनल है। ऑस्टियोब्लास्ट जब बोनी मटेरियल बनाएगी, तो बोनी मटेरियल बनाने के बजाय किसमें चेंज हो जाएगी, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर। और ऑस्टियोसाइट्स इसमें कंसेंट्रिक सर्कल ग्रुप में कैनल के बाहर प्रेजेंट है। दीज आर द ऑस्टियोसाइट सेल। यानी बोन के अंदर सेल किस वे से काम करती हैं, पेरियोस्टियम आउटरमोस्ट लेयर, एंडोस्टियम जो कि कैविटी के बाहर की प्रेजेंट है, येलो बोन मैरो कैविटी के एंडोस्टियम,
तो पेरियोस्टियम के इनसाइड में लेयर और एंडोस्टियम के आउटर मोस्ट में। इस प्रकार सबसे पहले इस लेयर के साथ अटैचमेंट होती है स्टेम सेल। ये स्टेम सेल से कौन सी सेल बनती है? ऑस्टियोब्लास्ट। तो इसने ऑस्टियोब्लास्ट बना दिया। ऑस्टियोब्लास्ट यहां भी और ऑस्टियोब्लास्ट यहां भी। ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या काम करती है? दे प्रोड्यूस द बोनी मटेरियल एंड चेंज इनटू ऑस्टियोसाइट्स। इन्होंने बोनी मटेरियल बनाया, जो बोन को रिक्वायरमेंट थी वो बनाया, और चेंज किसमें होगी? ऑस्टियोसाइट्स के अंदर। अब ऑस्टियोसाइट कहां है? हर्बिशियन कैनल के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर, लैकुना में प्रेजेंट है। ये क्या काम करेंगी? यहां पर जो बोनी मेटेरियल उसको एज इट इज मेंटेन कर देंगी। तो तीसरी प्रकार की सेल ऑस्टियोक्लास्ट कहां प्रेजेंट है? ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं वो जहां स्टेम सेल प्रेजेंट थी इसी के इरेगुलर मैनर से कहीं भी लेयर पर प्रेजेंट होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। These are the osteoclast cell. और what is the function of osteoclast cell? Excess amount में यदि osteocytes हो जाती हैं तो जब ओल्ड ग्रो हो जाएंगी तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल को ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगी? डीजेनरेट कर देंगी, नई सेल फिर बन जाएंगी। एंड इस प्रकार से बोन के अंदर मटेरियल जो होता है वो बनता रहता है। दिस इज द इफ द हर्बिशियन कैनस इज प्रेजेंट, इस प्रकार की जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इस प्रकार की बोन को बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, नॉट स्पॉन्जी बोन। ये जो स्ट्रक्चर बना किसका बना है? कॉम्पैक्ट बोन का, क्योंकि ये बोन हार्ड होती है, मिडल लेयर के अंदर हार्ड है। पहली बात तो इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ट्यूबुलर को क्या बोलते हैं? हर्बेशियन कैनल। एक हर्बेशियन कैनल दूसरी हर्बेशियन कैनल से अटैच होती है। अटैच होगी, पहली बात तो क्या है इसकी मेन, इसके इंपोर्टेंट नोटिस है कि अटैचमेंट साइड जो ऑब्लिकली तिरछी होगी। व्हाट आर द प्रेजेंट इन हर्बेशियन कैनल्स? There are many blood vessels and nerves present in Herbaceous canal so that they can provide the blood or nutrition substance to the bone. अब कंसंट्रिक लैमेली क्या होती है? हर्बेशियन कैनल के तरफ चारों तरफ कंसंट्रिक सर्कल होते हैं जिनको बोलते हैं कंसंट्रिक लैमेली। In concentric lamella there are many irregular surface arises which are known as lacuna. What are present in lacuna? There are many osteocyte cell present. Osteocyte, what is the role of osteocyte cell? They maintain the bony material. One lacuna is attached to the other lacuna that is known as a tubule structure which is known as canaculi. Clear? This is the structure of a compact bone. In next part we will discuss about the spongy bone.